Welcome back, investors. I'm your host, Dr. Seema Jain, and I have come back with a very beautiful stock. I can't say fundamentally how strong it is, but technically it looks very promising. When I'm saying fundamentally, why doesn't it look very promising? One is that it has been just, listed on the browsers. So the fundamentals are not that clear, but yet the price tells me a different story. So let me tell you the stock first. The stock is Dhampur Bio Organics Limited. If you want to hear more about it, if you're a long-term investor, you should hear me out completely, because the choice you have to make, it has to be your choice, right? It should not be influenced by what I'm saying. And for that, you need to know all the fundamentals. You need to know the price action. अगर आपको ठीक लगता है तभी आपको ये स्टॉक लेना चाहिए. मैं केवल अपना व्यू प्रेजेंट कर रही हूँ, तो प्लीज अगर आपको मेरा व्यू नहीं समझ में आता, आपको एक भी फंडामेंटल लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो देख रही हूँ वो और आप जो देख रहे हो उसमें थोड़ा डिफरेंस हो, तो प्लीज अगर आपको फंडामेंटल्स ठीक नहीं लगते या प्राइस ठीक नहीं लगता है तो आप प्लीज इसमें एंट्री मत लीजिए. तो बात करते हैं धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की. दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2022. Dhampur Bioorganics Limited is an integrated sugarcane processing company which manufactures refined and raw sugar, biofuels, biomass-based renewable power generation, ethanol production, and other related products. So there are very important things in this particular company. एक तो ये लोग reusable energy बनाते हैं, दूसरा ये लोग बायोफ्यूल बनाते हैं, जो कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बायोफ्यूल्स दो बहुत लेटेस्ट चीजें हैं इन द रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी. सो इनके जो प्रोडक्ट्स है, सबसे पहले इनका शुगर है, फिर बायोफ्यूल्स है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर डोमेस्टिक स्पिरिट्स है, ईएनए है, बेगासे है एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है. दैट मीन्स अगर आप सोचें, एक बार सोच के भी देखते हैं, तो हर एक चीज जो कि शुगर केन से निकलती है उनका ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट करते हैं. नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज वेस्टेड फ्रॉम द शुगर केन दैट दे गेट. सो बात करते हैं कि इनकी कैपेसिटी कितनी है. तो कंपनी हैज 3 प्लांट्स. इनकी मतलब आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल डिटेल, बट दे हैव 3 प्लांट्स. एंड in year 2022, company generated revenue from distillery, which is by making alcohol, and power division. So by 23%, and जो इनका major revenue आया वो आया sugar industry से about 77%. Now the company was demerged from Dhampur Sugar Mill, DSML, which is Dhampur Sugar Mill. उससे इसको demerge किया गया है. Why the scheme arranged approved by the board of Dhampur Sugar Mills on June 7, 2021, and it became effective from May 3rd, 2022. So business of DSML, which is Dhampur Sugar, was equally split between DSML and DBOL in to enable succession planning. Now what I also want to share with you people is that कि ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी, क्यों एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है. अगर आप नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहले जो कॉन्सेप्ट आया था अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी फॉर autos or automobiles, which that was biofuels. So biofuel, as I was discussing with my team, can be there for about another 3 to 4 years or 5 years, because eventually everything is going to convert into electric vehicle. So 3 4 years or 5 years, this this biofuel will have a lot of usages. अभी तक इंडिया में केवल एक गाड़ी आई है, टोयोटा ने उसको लॉन्च किया है हाइब्रिड मोड में, जो कि बायोफ्यूल्स को यूज करती है. तो अगर ऐसी और गाड़ियां आती है, देन द डिमांड विल इंक्रीज एंड देन द कंपनी विल आल्सो हैव ग्रेट फ्यूचर. अब बात करते हैं इसके बाकी के फंडामेंटल्स की. तो अगर आप पी देखते हैं 13 रुपीज पे है, 1315 करोड़ की मार्केट कैप है, ROC 11% है, ROE 12% है. और अगर हम कॉन्स की बात करें तो कंपनी might be capitalizing the interest cost. That could be a negative. अगर हम सेल्स की बात करें, देखो अभी क्या, ये कंपनी अभी लिस्ट हुई है, अभी आई थिंक जून 2022 में
लिस्ट हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई नया आईपीओ लॉन्च होता है तो उनके जो फंडामेंटल्स होते हैं थोड़े से ट्वीक होते हैं, उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर को खरीदें या आईपीओ के लिए अप्लाई करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इन पे रिलाय करना इज नॉट अ गुड आइडिया, बट स्टिल लेट्स जस्ट गो थ्रू देम। Sales have been increasing from 2021 से अभी तक. There is good increment in the sales. Expenses में भी increment है. अगर हम operating profit margin की बात करते हैं तो 2021 में 33 करोड़ थे, सितंबर 2021 में 12.5 करोड़ थे, मार्च 2021 में 101 करोड़ थे, जून में 32 करोड़ थे. आई थिंक ये साइक्लिकल, ये बिकॉज ये इनका रेवेन्यू या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द सीजन व्हेन द शुगर केन इज प्रोड्यूस्ड. सो दैट इज व्हाई आपको एक साइक्लिक दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है. अगर हम बात करते हैं कि ईपीएस, सो ईपीएस कभी एक समय पे नेगेटिव था और अब 68 रुपीज भी था कभी मार्च में, और अब 8 रुपीज और 7.72 रुपीज है. नो सॉरी, ईपीएस इनका अभी इन्होंने देना शुरू किया 1.24 एंड 1.16. नेट प्रॉफिट की बात कर रहे थे तो जून 2021 में पॉजिटिव था, सितंबर में नेगेटिव था, फिर उसके बाद मार्च में पॉजिटिव, जून में पॉजिटिव एंड सितंबर 2022 में 7.72 करोड़. बात करते हैं इनकी बोरोइंग्स की, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्च से लेकर सितंबर तक बोरोइंग्स जो है रिड्यूस हुई है, ऑलमोस्ट लाइक 50% हो गई है, विच इज अ गुड साइन कि कंपनी अपने लोन्स को रिड्यूस कर रही है धीरे धीरे. फिर बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, विच इज नेगेटिव, which should actually be always positive. I am not that good into reading the company's fundamentals, but अगर मैं पढ़ती हूँ, अगर आप में से कोई सीए है और आपको समझ में आता है ये बात, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, शायद मैं कुछ लर्न कर पाऊँ आप लोगों से. तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज 189, which is a good sign. Receivables is -2 crores. इन्वेंट्री इज -339, तो इसका क्या मतलब हुआ, और पेबल्स जो है -129, इसका क्या मतलब हुआ, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस -413, इसका क्या मतलब हुआ, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसका क्या मतलब हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो आई थिंक इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए ये -138, बट बाकी ये चार मुझे नहीं समझ में आ रहा है. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनी ऑफ यू हु अंडरस्टैंड इट. जहां तक डेटा डेज की बात है, केवल 25 दिन है इनके पास. और बात करते हैं अगर हम तो प्रोमोटर्स होल्डिंग की, विच इज स्लाइटली लेस देन 50%, एंड एफआईएस की होल्डिंग कुछ 7.37% है, और डीआईएस की होल्डिंग 0.6% है, एंड जनरल पब्लिक इज अबाउट 43%. सो ये तो कंपनी के फंडामेंटल्स है. और क्विकली अगर आपको इनकी वेबसाइट को विजिट करना है, यू कैन गो हियर एंड यू कैन गो थ्रू द प्रोडक्ट्स, तो शुगर, बायोफ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डोमेस्टिक स्पिरिट, all of it, you can check what all is there. And then let's come to the price, right? ये कंपनी का प्राइस स्ट्रक्चर है, ठीक है. आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है. मतलब टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एक्सेलेंट, जस्ट एक्सेलेंट आई वुड से. मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि आप इसकी पहली कैंडल को मार्क करिए. फर्स्ट कैंडल जिस दिन आईपीओ का लॉन्च हुआ था, उस कैंडल को हम लोग मार्क करते हैं. ये वाली फर्स्ट कैंडल है. उसके बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, बट इस कैंडल को देयर इज नो कैंडल, लाइक देयर वर दीस टाइनी टाइनी कैंडल्स, बट आई थिंक 140 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल सपोर्ट दैट द स्टॉक हैज. आफ्टर दैट प्राइस में एक अपशिफ्ट ही हुआ है लगातार. अगर आप नोटिस करेंगे तो प्राइस जो है धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला गया है. प्राइस में एक अपशिफ्ट है. और आज इसने, और दूसरी बात आप नोटिस करिए कि 16 नवंबर को बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, बट 16 नवंबर के बाद प्राइस हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब प्राइस ने ब्रेक नहीं किया. बट आज फिर से वॉल्यूम के साथ ये लेवल ब्रेक हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. अब बात आती है कि टारगेट्स क्या रहेंगे इसमें. तो अगर ये स्टॉक 140 पे जाता है, सपोज कुछ हो जाता है, मार्केट मैसिवली क्रैश होता है, तो 140 तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं. और मेरा टारगेट इसमें एटलीस्ट 300 तक का रहेगा, और हमारा
होल्डिंग पीरियड कुछ रहेगा 6 मंथ्स का। तो 200 to 300 ऑलमोस्ट लाइक 50% रिटर्न। आई डोंट नो, आई मीन आई मे बी रॉन्ग। आप लोग ये मत सोचो कि आपको पूरा 50% रिटर्न ही चाहिए। अगर आपको 10, 15, 20% रिटर्न आ रहा है, आप लो और बाहर आ जाओ। इंपॉर्टेंट इज दैट यू बुक प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करोगे देन योर मनी विल बिकम जीरो। सो आई डोंट वांट योर मनी टू बिकम जीरो। प्लीज कीप बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स सो दैट यू कैन really roll up your capital into some other stock. So don't go कि मैं 50% आएगा तभी बाहर एग्जिट करूंगा, बीच में पहले भी निकल सकते हो आप लोग अगर आपको प्रॉफिट आ रहा हो। तो ये स्टॉक था डी बॉल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एज आई टोल्ड यू कि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक बढ़िया मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो स्टॉक का फंडामेंटल्स है दे आर प्रीटी गुड। और यहाँ से मुझे लगता है आज 198 पॉइंट समथिंग पे इसकी क्लोजिंग हुई है, तो 300 आने में इसको कुछ 2-3-4 महीने लग जाएंगे, बट 50% रिटर्न इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। सो ये था स्टॉक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बट प्लीज आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, आप अपना मनी मैनेजमेंट करिए। आपको ये नहीं करना है कि सारा जितना पैसा था आपके पास, जितना आपके सेविंग अकाउंट में था या प्रोविडेंट फंड में था या आपने अपना घर बेच दिया या अपना डॉटर की मैरिज के लिए रखा था, सारा उठा के इसमें डाल दिया कि अब तो पैसा डबल हो जाएगा या 1.5 गुना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्केट किसी भी समय टर्न कर सकती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। मार्केट में वही बंदा सक्सेसफुल है जो कि अपना मनी मैनेजमेंट अच्छे से करता है। थोड़ा प्रॉफिट चलेगा बट लॉस बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो केयरफुली ट्रेड करिए। ग्रीड मत आने दीजिए अपने अंदर। थोड़ा काम करिए, थोड़ा पैसा बनाइए, ठीक है, बट ग्रीड जिस दिन आप करोगे मार्केट आपसे सारा पैसा एक ही दिन में लेके चला जाएगा। With this, I'll be signing off, and do join me for live trading every single day from 10 to 11, when I trade with my team, and we all try to filter out very very good stocks. Like today, I think we traded in. I couldn't join it because of some technical glitches, but my team had given Dabur for a buy, and you can see how beautiful the breakout had come. With this, I'll be signing off. If you like my work, if you like the kind of work I do and the kind of work my team does, please give a thumbs up and like, share, and subscribe. And there's no hidden agenda behind it. The channel is not monetized, and we just want to help retailers, and that's why we are doing it. All the best. Take care. See you in the next video. Bye bye. Take care.